آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کراچی کے موسم کے حوالے سے تو شہر کو آج بھی بادلوں کو گھیر رکھا ہے. تیز بارش شام تک متوقع ہے. فی الحال شہر میں شدید گرمی ہے. درجہ حرارت 41 ڈگری تک جا پہنچا ہے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کراچی میں موسم خوشگوار ہو رہا ہے اور فی الحال شہر میں شدید گرمی ہے اور درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر کو آج بھی بادلوں نے گھیر رکھا ہے اور تیز بارش شام تک متوقع ہے. فی الحال شہر میں شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہے. آج شہر قائد میں ہلکی بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے اور پہلے سپیل کا بھی آمد جو ہے وہ متوقع ہے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں جو ہے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں اور آج شام کو بادل برسیں گے. تیز ہوائیں اور آندھی بھی چل سکتی ہے. منگل تک جو ہے وہ بادل جم کر برسیں گے. محکمہ موسمیات نے یہ نوید سنا دی ہے. بارش کا پہلا سسٹم جو ہے وہ 5 جولائی تک کراچی پر اثر انداز رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سپیل کی بات کریں تو وہ 7 جولائی سے بارش برسائے گا. مزید تفصیلات جاننے کے لیے جی عادیہ بتائیے گا اس وقت کراچی کا موسم کیسا ہے؟ کراچی کا موسم اس وقت جو ہے وہ شدید گرم ہے اور کراچی والوں کو کہا گیا تھا کہ آج صبح بارش ہوگی، لیکن اب ایسا ہے کہ جو مونسون کا سسٹم ہے وہ کراچی میں لیٹ داخل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بارش جو ہے وہ رات میں ہوگی اور شام میں ضرور شہر میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. جبکہ اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن شدت جو ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکی ہے. تو گرمی کو برداشت کرنا ذرا ناممکن سا لگ رہا ہے. ایسا ہے کہ شہر میں حبس کی بھی کیفیت ہے. ہوا ضرور چل رہی ہے لیکن اس کی رفتار بہت زیادہ کم ہے. سمندری ہوائیں بحال ہیں شہر میں. جنوب مغربی سمت سے ہوا کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 10 ناٹیکل مائل بتائی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج جب بارش شروع ہوگی تو اس سے قبل شہر میں آندھی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ پہلے شروع ہوگا، پھر کہیں جا کر جو ہے وہ بادل برسیں گے. تو کراچی والوں کو بادلوں کے لیے آج رات کا انتظار کرنا ہوگا اور یہ جب سلسلہ شروع ہوگا پہلا اسپیل جو ہے مونسون کا، یہ تقریباً 5 جولائی تک جاری رہے گا. اس کے بعد سے پھر سے یہی کہا گیا ہے کہ 7 اور 8 جولائی کو دوبارہ بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شہر میں بارشیں شدید بارشیں ہوں گی، اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشیں تیز ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اربن فلڈنگ کا لفظ استعمال کرنا جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوگا. جبکہ اس وقت کا جو اگر مرطوبیت کی بات کریں تو شہر میں ہیومیڈیٹی جو ہے وہ اس وقت تقریباً 59% پر موجود ہے. ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے گرمی کی اور آج رات میں ممکنہ طور پر یہ زور جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. جی اچھا عادیہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. عادیہ یہ بھی بتائے گا کہ ہوائیں رکی ہوئی ہیں یا کب تک چلیں گی اور کتنی رفتار دیکھی جائے گی ہواؤں میں؟ نہیں، ہوائیں جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہیں. ہوائیں شہر میں بحال ہیں اور جنوب مغربی ان کی سمت ہے. سمندری ہوائیں ہیں یہ اور لیکن ان کی رفتار جو ہے وہ خاصی کم ہے. تیز رفتار جو کہ ان کی عموماً ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کچھ عرصہ شہر کا جو ہے 1.5-2 ہفتے پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر کا موسم ہوادار تھا. رفتار جو ہے تقریباً 25 سے 30 ناٹیکل مائل بھی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ صبح کے اوقات میں 4 سے 6 ناٹیکل مائل ہوتی ہے، دوپہر میں جو ہے وہ 10 ناٹیکل مائل ہوتی ہے اور اس وقت جو رفتار ہے وہ 10 ناٹیکل مائل ہی ریکارڈ کی گئی ہے. کم رفتار ہے اور مرطوبیت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو کراچی والے جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ اب ان کو برس جانا چاہیے کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ برداشت سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. جی عادی یہ بھی بتائیے گا سمندر میں طوفانی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو بتائیے. سمندر میں طغیانی جو تاحال موجود ہے کیونکہ عموماً جو جون جولائی کا موسم ہوتا ہے کراچی کا وہ سمندر میں طغیانی کا باعث بنتا ہے اور لہریں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں. اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں یہ 2 دریا کا مقام ہے. یہاں پر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لہریں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن طغیانی کی وجہ سے آج لہریں بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ساحل کے ساتھ پانی ٹکراتا ہوا بھی ہمارے نظر ساتھ ہی موجود رہیے گا. بارش کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ریجیمنٹ سردار سرفراز صاحب سے. جی سردار سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کراچی والے انتظار کر رہے ہیں، بادل جم کر کب برسیں گے؟ دیکھیں جی، بارش کا امکان آج بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے. اصل میں جو سسٹم کراچی کی طرف آنا تھا وہ راجستھان پہ ابھی تک موجود ہے اور اس کا کچھ حصہ عربین سی کی طرف شفٹ ہو گیا ہے.
और अरेबियन सी से होता हुआ फिर ज्यादा मॉइस्चर जा रहा है बलूचिस्तान की तरफ, तो वहाँ अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में आज तो वही यही पार्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, दिन में और शाम में या रात में कुछ हल्की बारिश हो सकती है। कल अलबत्ता लाइट टू मॉडरेट रेन है, और फिर परसों इम्कान है कि गरज चमक के साथ बारिश हो, मॉडरेट और किसी किसी जगह पर हैवी। तो कल की उम्मीद है और परसों की उम्मीद है। जी सर, ये भी बताइएगा, पेशगोई की गई थी कि पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश होगी, तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो तो डिपेंड कर रहा था ना कि सिस्टम अगर कराची पे से होता हुआ गुजरता, अब वो उसका बेशतर हिस्सा समंदर की तरफ निकल गया। वो मशरूत होती है चीज, कोई हतमी चीज तो नहीं होती कि 100 मिलीमीटर कही थी तो 100 ही होनी थी। यानी वो उसके साथ शर्त यही थी कि अगर ये मूव करता हुआ सीधा आपके ईस्टर्न सिंध से सीधा कराची की तरफ आता है और पूरे कराची को स्वीप करता हुआ निकलता है, देन 100 मिलीमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन अब वो सूरत हाल थोड़ी बदल गई है, उसका बेशतर हिस्सा समंदर की तरफ निकल गया है, तो अभी कुछ जो बाकी है, कुछ फ्लो अभी आना है, उसके नतीजे में मॉडरेट और किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स मैंने आपको बताया कि परसों मुतवक्के हैं। जी आज तो लाइट रेन ही आप रात में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ड्रिजल या लाइट रेन, और इसी तरह से कल भी लाइट रेन ही है जनरली। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बारिशों का जो सिलसिला है, मौसलाधार बारिशें होंगी या सिलसिलावार बारिशें होंगी वक्फे वक्फे से? सिलसिलावार है, इतनी कि मूसलाधार जैसे जैसे पहले तवक्को की जा रही थी ना कि सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया है वो पूरे का पूरा मतलब सिंध को खासकर लोअर सिंध को स्वीप करता हुआ निकलेगा, तो उसके नतीजे में ज्यादा बारिशों की तवक्को थी। तो अब चूंकि सूरत हाल कुछ बदल गई है, तो अब ये कि वक्फे वक्फे से इम्कान है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पहला स्पेल तो 100 मिलीमीटर अभी तवक्को की जा रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दूसरा स्पेल या तीसरा स्पेल अगर बारिश बरसाएगा तो इससे क्या कितना मुतासिर कर सकते हैं ये इस तरह से शहर कायद को? अभी तो पहले स्पेल तो आप गुजरने दे, आने दे उसको 5 तक या 6 तक। अब आज जो हम अपडेट इशू कर रहे हैं उसको देखिएगा, उसमें यही है कि ये वेडनेसडे तक बुध तक ये सिलसिला, मंगल और बुध को ज्यादा इम्कान है, तो उसमें कितना मुतासर कर सकते हैं अब ये 24 घंटे पहले ही बताया जा सकता है, क्योंकि सूरत हाल बदल जाती है, सिस्टम की डायरेक्शन बदल जाती है या उसमें वीकनेस आ जाती है। एक्चुअली एक और लो प्रेशर एरिया पीछे ईस्टर्न इंडिया या बंगाल पर बन रहा है, तो जब 2 बनना शुरू हो जाए तो एक स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है तो दूसरा वीक होना शुरू हो जाता है, ये वजह होती है। जी ठीक है, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिया नाज से एक बार फिर से जानेंगे। आदिया, बताइएगा कि आज छुट्टी का रोज़ है और आज अब इस वक्त वहाँ समुंदर में मौजूद हैं, तो वहाँ क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? लोग जो है वो बारिश के इंतज़ार में, खुशगवार मौसम के इंतज़ार में घरों से बाहर निकले हैं, और साहिल का रुख कितने लोगों ने कर लिया है? बिल्कुल, कराची में जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी है, मौसम खुशगवार नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस भी नहीं हो रही। यही वजह है कि कराची वाले जो हैं वो साहिल का रुख कर रहे हैं। अलबत्ता इस साइड पर आकर निस्बतन मौसम थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है, और कराची वाले जो हैं वो वैसे भी छुट्टी के दिन तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते साहिल समंदर पर आने का, चाहे वो कोई भी साहिल हो। हमें कराची वाले वहाँ नज़र आते हैं। सुबह के वक्त में पिकनिक का समय होता है, और इस वक्त भी मेरे बैग पर भी आप नज़र मुलाजा कर सकते होंगे। फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, दोस्त अहबाब भी अपने दोस्तों के साथ आकर, ये जो पॉइंट है ये 2 दरिया का पॉइंट है, यहाँ पर फ़िशिंग भी करते हैं, और इस वक्त हमें कुछ लोग जो है वो फ़िशिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और शाम में फिर यहाँ से फ़िशिंग करके वो घरों को लौट जाते हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही आई हुई हैं, और वजह यह है कि यहाँ पर सूरज की वो तपिश महसूस नहीं हो रही जो तपिश हमें शहर के दीगर हिस्सों में नज़र आती है। जी अच्छा आदि, ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए हैं साहिल समंदर में? साहिल समंदर पर इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम तो वैसे भी रहते ही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अगर बेकाबू होना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई अमल दखल नहीं है, पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। लोग क्योंकि ये 2 दरिया का पॉइंट है और ये खुद ही वैसे ही बहुत ख़तरनाक होता है, इसका कुछ साहिल या किनारा नहीं है,
लोग जो है वो पहाड़ के ऊपर बैठकर नीचे पानी के नज़ारे को जो है वो देखते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं और इस वक्त यही मंजर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पानी के अंदर जाकर नहाया नहीं जा सकता क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है। लोग सिर्फ पहाड़ों के ऊपर बैठकर पानी का नज़ारा करते हैं या फिर ऐसी किसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पाँव जो है वो गीले हो सके। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर लोग खुद ही जो है वो एहतियात बरतते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक दफ़ा खुदा न खासा कोई हादसा हुआ तो यहाँ से बचना ज़रा नामुमकिन सा होता है। लोग खुद ही इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कोई गफलत नहीं बरतते। जी ठीक है, आदिया नाज हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मानसून बारिशों के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक की टीमें अलर्ट हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने हिदायत की है कि बारिश होने की सूरत में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में खसूसी एहतियात करें। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मानसून बारिशों के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक की टीमें भी अलर्ट हो गई हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि बारिश होने की सूरत में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में खसूसी एहतियात भी रखें। मानसून की पहला स्पेल जो है उसमें बारिशें मतवक्के हैं। हल्की और तेज़ बारिश होने के पेश नज़र भी के इलेक्ट्रिक की टीमें अब अलर्ट हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि बारिश होने की सूरत में शहरी एहतियात बरतें और बरकी आलात के इस्तेमाल में खसूसी तौर पर एहतियात भी करें। इस दौरान शहर से इल्तमास है कि कुर्बानी के जानवरों को भी बिजली के खंभे और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखें क्योंकि ये इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये इक़दाम जारी किए गए हैं, ऐसा कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का भी सबब बन सकता है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या कहा गया है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से? बिल्कुल, देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मानसून बारिशों की जो पेशगोई है उसके हवाले से के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से भी अब जो है अपना बयान जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि जो कराची के शहरी हैं वो खास तौर पर जो बरकी आलात का इस्तेमाल है वो इस बारिश के मौसम में उनका इस्तेमाल करते हुए खसूसी एहतियात जो है वो करें। और साथ साथ मोटरसाइकिल सवार जो शहरी हैं, जो कि हम देखते हैं कि हर साल कराची में बारिश में हादसा का बाइस बनते हैं और बिजली के खंभों वगैरह से जो है वो टकराने के बाइस, करंट लगने के बाइस जो है वो जान की जो बाजी है वो हार जाते हैं। इस वजह से कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से एहतियाती तदबीर उनको भी अपनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि कुर्बानी के दिन है, ईद उल अज़हा इस वक्त चल रही है और जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको भी जो है वो ऐसे किसी बरकी आलात और बिजली के खंभों वाली जगहों से जो है वो दूर बांधा जाए। बारिश का इस वक्त जो है वो पेशगोई है 3 से 5 जुलाई कराची में जो है वो शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई है, जबकि इसके बाद दूसरा स्पेल भी है जो कि 7 से 9 जुलाई तक जो है वो जारी रहना है। तो कराची में इन बारिशों के जो है वो पेश नजर के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से भी शहरियों को आगाही पैगाम भी जारी किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश का पानी ज्यादा खड़ा होता है उन इलाकों में जो बिजली की लोड शेडिंग है और जो बिजली बंदिश होती है, जो कि जहाँ पे बिजली के जो सब स्टेशन है वहाँ कायम किए जाते हैं, उन इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो भी बारिश के जो औकात हैं उसमें बंद की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान हमें अपडेट करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हैदराबाद दही से इंतखाबात से कबल तीर चलने लग गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शर्जील एनाम मेमन के हल्के से उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए, जिनमें 6 चेयरमैन और 6 वाइस चेयरमैन जबकि 16 काउंसलर्स भी बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीला जानने के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद डिवीजन में इंतखाबात से कबल जो है सरप्राइज देने लग गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील एनाम मेमन उनका हल्का हैदराबाद दही है जहाँ से 28 उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। हैदराबाद दही टंडो जाम से 6 जो है चेयरमैन, 6 वाइस चेयरमैन और 16 जो है जनरल काउंसलर बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नामजद करता इन उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के उम्मीदवार थे जो इनके हक में बरतर हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है नशिस्तों पर बिला मुकाबला मैदान मार लिया है, जिसका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो।
महंगाई के हवाले से अपडेट करें तो हफ्ते के इख्तिताम पर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। टमाटर ने सेंचुरी अबूर कर ली, आलू भी महंगा हो गया है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में सरकारी सतह पर भी सब्जी महंगी हो गई तो वहीं टमाटर भी सेंचुरी अबूर करके 120 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे जायद पर जा पहुंचा। मार्केट में प्याज 80 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सकी, जबकि प्याज की सरकारी कीमत 66 रुपए किलो है। सफेद आलू 10 रुपए महंगा होकर 50 रुपए से 60 रुपए किलो तक दस्तियाब है। आलू की सरकारी कीमत 41 रुपए किलो है। हरे मसाले में हरी मिर्चें 240 रुपए तक पहुंचकर शहरियों को मिर्चें लगाने लगी, जबकि धनिया पुदीना 20 रुपए से कम नहीं हो पाया। धनिया की सरकारी कीमत 12 रुपए और पुदीने की 10 रुपए है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में सब्जी भी पहुंच से दूर हो गई है। तमाम सारी सब्जियां महंगियां हो गई हैं। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं कि नहीं चाहिए। जो टमाटर देख लो तुसी के 120 रुपए किलो दे रहे हैं जी। तो हर चीज़ सर महंगी हो गई है। बिल्कुल गरीब दो तो पहुंच तो हर चीज़ ऊपर चल गई है। सब्जी सर महंगा है, देखिए अभी 120 रुपए टमाटर किलो चल रहा है। इसका भी कसूर नहीं है, ये भी सब्जी लेके आ रहा है। दूसरी जानिब मटर की सरकारी कीमत 303 रुपए किलो पर पहुंच गई है। इसी तरह सलाद पत्ता और मेथी की कीमतें सीजन न होने के सबब आसमान से बाती कर रही हैं, जिसके सबब बेशतर सब्जी फरोश उन्हें फरोख्त नहीं कर रहे। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो कराची की मवेशी मंडी में भी मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। अब तक 4 लाख से ज़ायद जानवर मवेशी मंडी लाए जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सोहराबगढ़ मवेशी मंडी में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है। जी हबीब, बताइए। ईद कुर्बा की आमद में अब सिर्फ 6 रोज़ बाकी हैं और मैं इस वक्त कराची की जो सोहराबगढ़ मवेशी मंडी है, जो कि एशिया की भी सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानी जाती है, वहाँ मौजूद हूँ। छुट्टी का रोज़ है। व्यापारी इस वक्त रात की जो कराची की मवेशी मंडी में रश था उसकी रौनकें थी। उसके बाद अभी इस वक्त जो है वो थोड़ा सा सन्नाटा दिखाई दे रहा है मंडी में। सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन व्यापारी उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि आज भी कराची का जो मौसम है वो बेहतर है, तो दिन में भी आज कराची के जो शहरी हैं वो मंडी का रुख करेंगे। साथ ही साथ शाम में ज़ाहिर है ख़रीदारी का रुख होगा और ख़रीदारी यहाँ पर आएंगे। मजमूई तौर पर अगर मवेशियों की आमद के हवाले से बात करें तो इस वक्त बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि 4 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं वो इस वक्त मंडी में लाए जा चुके हैं और उनकी फ़रोख्त का भी इसी तरह से सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अभी भी मवेशी में जो मंडी में आमद का सिलसिला है मवेशियों की वो जारी है और उम्मीद है कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो मवेशी हैं उनकी आमद यहाँ पर इस बार मुतवक्का है और 6 रोज़ बाकी हैं, तो ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है मंडी इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर इधर इस वक्त बारिश का सिलसिला जैसे कराची में एक्सपेक्टेड है और बताया जा रहा है कि बारिश कराची में ज़्यादा जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है और तो उसके हवाले से भी इंतज़ामिया जो है वो पूरा एक्टिव नज़र आ रही है और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं पंपिंग समेत वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी किस्म की नकासी के जो इंतज़ामी है उससे निपटने के लिए तमाम तर जो यहाँ पे अमला है और इसके साथ साथ जो मशीनरी है वो यहाँ पर। शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए।